آپ کی دعائیں اور مالک کا بڑا احسان الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. حکم کریں حضور. رات کو مجھے میسج کیے تھے اور فون پر بھی بات ہوئی تھی. جی جی. اور فرما رہے تھے کہ جناب آپ صاحب اعتراض کر رہے ہیں کہ شیخ صاحب کو کہیں کہ وہ میری جو آڈیو ہے اس کو آن ایئر کریں. اچھا اچھا. اور میری جو ان سے بات ہوئی تھی اس کو وہ آن ایئر کریں. میری آڈیو کیوں نہیں آن ایئر کرتے؟ دوسروں کی وہ بڑی جو ہے نا وہ آن ایئر کر دیتے ہیں. جی جی. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی اپنی جو کوالیفکیشن ہے نا وہ مجھے بتا دیں تاکہ اس لیول پر میں آپ سے بات کر سکوں. میں حضور دین کا ادنا سا طالب علم ہوں. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی پڑھ رہا ہوں. درسیات مکمل ہو چکی ہیں. تقریباً 2018 میں فراغت ہوئی تھی میری جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن لاہور سے. ٹھیک ہے جی. مزید اگر دنیاوی تعلیم آپ پوچھتے ہیں تو میں نے ماسٹر کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے, گریجویشن کراچی یونیورسٹی سے, انجینئر بھی ہوں تھوڑا بہت. نظامی آپ نے مکمل کیا یا شارٹ کورس کیا؟ نہیں, درس نظامی مکمل کیا ہے میں نے. تو درسیات میں فن میں کون کون سی آپ نے کتابیں پڑھی؟ یہ بحث کا موضوع نہیں ہے میرے خیال میں. سب کو پتہ درسیات میں کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, تو جو مدعا ہے اس پر بات کرتے ہیں سر. نہیں مطلب کی بات نہیں ہے. آپ بات کرنا چاہیں گے نا اس کے مطابق نہیں, آپ دیکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی جی. آپ نے اپنے شیخ منہاج کا دفاع کرنا ہے, اس کی جو نظریات عقائد ہیں ڈیفینڈ کرنا ہے. میں نے اچھا اچھا, ماشاء اللہ. ایسا نہیں ہے. جو جس کی غلطی ہوگی, دیکھیں آپ بات سمجھیں. پہلے جو کلپ بنایا تھا میں نے سیر القادری صاحب کے خلاف پہلے کلپ نہیں بنایا. اچھا. آپ نے کلپ بنایا تھا, مجھے کسی دوست نے بھیجا, اس میں آپ نے جو صاحب نے بات کی تھی. جی جی. تو اس سے آپ نے پھر وہ اپنے جو انداز میری بات کی, اس کے بعد پھر میں نے جواب دیا. جی. پھر آگے آپ نے وہ کووڈ-19 کے مسئلے پر آپ نے کیا, پھر میں نے جواب دیا. جی جی. اس کے بعد ہماری میری بات ہوئی, بات میں نے کی تھی, آپ نے مجھے کال نہیں کی. جی جی. اور آپ پھر آدھا گھنٹہ بات ہوئی تھی. آپ نے اس اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ میری اس سے پوری 1 گھنٹہ بات ہوئی ہے. جی اور جی. اس کو چاہیے میری آڈیو آن ایئر کرے. جی جی. اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ نہ کہنا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ایسا ویڈیو نہیں بناؤں گا. میں نے کہا انشاءاللہ نبی کہا تھا. جی جی. تو انشاءاللہ کیا یہ آپ نے کون سی میری انشاءاللہ بات کہی تھی؟ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے سر, یہ آپ مجھے بتا دیں. نہیں وہ آپ کی طرف آپ جا رہے ہیں نا. نہیں, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ اتنا وقت آپ کے پاس ہے, آپ مجھ سے زیادہ علمی آدمی ہیں, قیمتی وقت ہے آپ کا. آج کل دیگر تحریکات اور سرگرمیوں میں بھی آپ ہیں, مصروف عمل ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ مختصر جو ہماری بات ہونی ہے اس پر بات کی جائے. ادھر ادھر کی باتوں کا کیا فائدہ سر, وہ بتائیں پھر. میں اسی لیے بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ درسیات میں نے کیا پڑھا ہے, آپ نے کیا پڑھا ہے, وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری درس نظامی میں کیا پڑھایا جاتا ہے, 8 سالہ کیا نصاب ہوتا ہے, 8 سال کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ سب ہمیں پتہ ہے. جی سر. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, پھر عبارت پڑھنا پڑ جانی ہے کسی حدیث پڑھ سکتی. پھر آپ نے کہنا کیونکہ میں تو درسیات پڑھا ہوا نہیں تھا. اچھا. میں نے تو وہ جو منہاج سے کیا ہوتا فضل علوم فاضل عربیہ وہ میں نے کیا ہوتا. آپ عبارت بتا دیں, میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا. ٹھیک ہے, آگے آپ بات کریں. عبارتوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. اگر کوئی عالم دین عبارت نہیں پڑھ سکتا, بڑے بڑے علماء جو نہیں پڑھ سکتے, تو کیا وہ عالم نہیں ہوتے؟ عبارت پڑھنا ہی سند ہوتی ہے. کون نہیں پڑھ سکتا؟ اچھا, آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا, بڑی بات ہے. یعنی جو مضاف اور مضاف الیہ نہیں جانتے, یعنی وہ قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے پھر. نہیں, مولا علی علم ناف کے واضح ہیں نا, تو مولا علی نے کہیں شرط لگائی ہے کہ آپ ٹاپک سے ابھی ہٹے نہیں نا. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب نہیں پڑھ سکتے. مولا علی علم ناف کے واضح ہیں, تو مولا علی نے کہیں کہا ہے کہ علم ناف جو پڑھے گا وہی قرآن پڑھ سکتا ہے. ارے سر, آپ یہاں وہاں نہیں جائیں. جو مدعے کی بات ہے, علامہ آپ عالم دین ہیں. عبارتیں پڑھنا, عبارتیں نہ پڑھنا, اس کا درسیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, میری بات سنیں, حکم کریں. میں 101% متفق ہوں. اس کے جو عقائد ہیں آپ اس متفق ہیں؟ میں 101% متفق ہوں سر. اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے سکتا ہوں. جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں ہم متفق ہیں. ٹھیک ہے, اب میری آگے بات مکمل ہونے دینا. میری بات مکمل ہونے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثریت میں امت کا اجماع ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل اجماع ہے. تو آپ نے القول الوسیع کی کتاب پڑھی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا کال آپ بتائیں مجھے. القول الوسیع
के अंदर उसने सर मैं किताब खोल के आपको बता देता हूँ जी। और जो विलायत और रूहानी खिलाफत है वो हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। तो सैयदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। गदीर की हदीस आपने नहीं पढ़ी है? खलीफा खिलाफत मौला अली है। खलीफा विलायत मौला अली हम तो मानते हैं, आप नहीं मानते। विलायत में मौलायत किसे मिली है सर? खिलाफत मौला अली है। आप मेरी बात सुने, आप अभी बात घुमाए नहीं। आज तक उम्मत में विलायत का सरदार किसे कहा जाता है सर? अरे सर सर विलायत में हम पहला नंबर किसे देते हैं आप बता दें मुझे, इस्लाह करें मेरी सर प्लीज। सर आप मेरी बात सुने, इस तरह तो फिर बात कहीं और निकल जाएगी। विलायत का जो मकाम है खिलाफत के मकाम से जुदा है, ठीक है। आप इस बात को, दो बातों को आप एक बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं विलायत, उम्मत का इजमा इस पर चला आ रहा है कि सैयदना मौला अली सैयदुल औलिया हैं, विलायत के सरदार हैं। हम आप देखें सर, आप अभी दो बातों को, आप वसी को और वली को एक कर रहे हैं। अरे सर आप कह रहे हैं कि विलायत और खिलाफत इसके माबैन जो आप तस्दीक कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं, इस किताब को हवाला मुझे दे देंगे। पुरानी किताब लिखा विलायत और है खिलाफत और है। देखिए आपने बात की है ना, आप मुझे रद में दलील पेश कर दें, विलायत और है खिलाफत और है, मैं भी बात से पीछे हट जाता हूँ। जो दावा करता है ना सर, बात सुने ना, दावे को दलील है, ये आपको नहीं पता दावे को दलील है तो दलील दें आप। मैंने तो दावा किया ही नहीं है, आपने बात छेड़ी है। अभी आप दलील दें, अगर आपने दरसियात पढ़ी है तो दावे को दलील है, आप दलील दें सर प्लीज, मुझे दलील दें ताकि मैं अपनी बात से रुजू करूं। क्या विलायत में पहले कहने से खिलाफत का इजमा टूट जाता है? बराए करम बताएं। अरे सर आप बात ही नहीं समझ रहे। अल्लाह आपको सेहत कामिला आजिला मुस्तकिल्ला नसीब फरमाए। आप दो बातों को जम करें। नबी ने मौला अली का हाथ पकड़ के विलायत का ऐलान कर दिया, किया नहीं किया? नबी ने नहीं किया तो आप मुझे सर पे जूता मारें सर। मैं कहूं कि नहीं, सैयदना अबू बकर खलीफा नहीं है, अफजलियत शेखैन का मैं कायल नहीं हूं, तो फिर आप मेरे सर पे जूता मारें। इस तरह बात नहीं होगी। जब मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया था कि आपने सैयदना सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना अमीर क्यों माना है, तो आपने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जब सरकार ने इनको दीन का हमारा इमाम बना दिया तो हमने इनको अपना दुनिया का इमाम बना दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया था ना, ऐसा ही है। मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। जिनको अपना पीर, इनको अपना पीर मौला अली रज़ियल्लाहु तआला जी अन्हु जी मान रहे हैं, जी जी, आप ये कहां से तस्लीम करके फिर मकाम और विलायत और खिलाफत का आपके जो आपने कहा कि उम्मत का इजमा चला आ रहा है सैयदना अबू बकर खलीफा बिला फसल है, ऐसा ही है? अभी छोड़, अभी बात खत्म करते हैं, आप छोड़। आपने कहा ना ऐसा ही है, मैंने इनकार किया है? जब इनकार नहीं किया तो फिर वो तुम्हारे तारुल कादरी कहते हैं कि इनका मेरा मतलब नहीं, तुम्हारे तारुल कादरी तो नहीं होता सर। आप एक तो नाम अदब से लिया करें। मेरे और आपके वालिद वो नहीं है जो हम उनकी बेअदबी करें, वो एक आलिम दीन है और आलिम दीन का जो दब होता है उससे बात करें। हम एथिक्स में रहते हुए बात करते हैं, ठीक है। आप भी रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो जो मॉरल वैल्यूज हैं वो डिवेल्यूएट नहीं करनी चाहिए, जो एथिक्स के साथ बात करते हैं। जी देखें, आपने सर अभी बात की, इस तरह बात नहीं, आप बात पूरी करें, मैं बात करता हूँ। आपने कहा कि सैयदना अबू बकर बिला फसल खलीफा अव्वल है, उम्मत का इजमा है। जी जी, ये आप किन की बात करें सर? माजरत के साथ मुफ्ती साहब बात दोबारा शुरू कीजिएगा। मैं मुफ्ती साहब बात दोबारा शुरू कीजिए, माफी चाहता हूँ, मैं सुन नहीं पाया था, सॉरी। दोबारा शुरू बात हो चुकी है। जी जी, मेरे आपसे बार-बार ये सवाल है सर, कादरी के आप फैसला से 101% मुत्तफिक हैं? बिल्कुल, जो कुरान सुन्नत के मुताबिक हैं हम मुत्तफिक हैं, जो कुरान सुन्नत के मुताबिक हैं हम मुत्तफिक हैं। फासिक की तारीफ क्या है? किसकी? फासिक की। फासिक सादिक की तारीफ क्या होती है सर, आपको नहीं पता? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुझे तो पता ही नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप बता दें, मेरे इल्म में नहीं होगा। सादिक इतना भारी लफ्ज आपने बोला है, मुझे क्या पता सर क्या तारीफ होगी। नहीं, आपको फासिक की तारीफ नहीं आती? आप फासिक कह रहे हैं या सादिक, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ फासिक, आपने सादा लफ्जों में तारीफ करें आप और मेरी समझ की, तो फासिक झूठे को कहा जाता है सर। फासिक की तारीफ मैंने आपसे पूछी है,
डेफिनेशन आपसे पूछ रहा हूँ फासिक की क्या है। सर मैंने आपके सामने कर दिया है, आम लफ्जों में आवाम की जबान में कहें। दाढ़ी मुंडवाने वाला फासिक है कि नहीं है? अरे यार आप ये बात कहाँ, दाढ़ी वाली बात कहाँ पे आ गई बीच में? दाढ़ी वाली दाढ़ी क्या शरीयत इस्लाम में नहीं है? अच्छा अभी आप मुझे बताएं, आप अब दाढ़ी पे बात लेकर आ रहे हैं ना? दाढ़ी शरीयत इस्लाम में नहीं है। अच्छा चलें, अल्लाह आपको सलामत रखे। दाढ़ी कटवाने वाला फासिक है? अभी आप मुझे एक दलील देंगे? सर आपने बहुत बड़ी बात की है, मुफ्ती इमरान जलाली साहब। और फासिक की तारीफ करना ये अल्लाह और रब्बुल इज्जत के गज़ब को दावत देना है, आपको बताना चाहिए। अभी आप ना मुझे एक फासिक के लिए जो आपने ये बात की है, जामे सगीर के अंदर ये सरकार का फरमान मौजूद है कि जो शख्स की फासिक की तारीफ करता है अल्लाह का गज़ब और फिर अर्श इलाही झिलता है, ये आपको याद होना चाहिए। सर मैं ना अभी आप इल्मी बात पे आ रहे हैं ना, आप सुन लें। फासिक अच्छा माशाअल्लाह, अभी हो गया आपका सर? अभी मैं अर्ज करता हूँ ना सर, मैं हाजिर खिदमत हूँ आपके, मैं अर्ज करता हूँ ना। मैं अर्ज करता हूँ ना सर, मैं अर्ज करता हूँ, मुझे दाढ़ी में इमामत की शराइत दिखा दें बराए करम सर। इमाम अभी आपने बात नहीं करनी, दाढ़ी इमामत की शराइत में लाजिम है, उलमा ने की है। मुझे एक किताब का हवाला दें, अभी का भी दें। हाँ हवाला दें सर, प्लीज हवाला दें, लोग सुन रहे हैं आपको। बुखारी का, मुस्लिम का हवाला दें कि दाढ़ी इमामत की शराइत में शामिल है, प्लीज हवाला। आप मुझे हवाला देंगे, अब आपने बात नहीं करनी, प्लीज सर आप मुझे हवाला दे दें। आप नूरुल इजाज जो बुनियादी किताब है उसमें इमामत की शराइत में दाढ़ी का हवाला दे दें, बुखारी मुस्लिम छोड़ दें सर। कहाँ लिखा है कि एक मुश्त रखना वाजिब है? किसने कहा है? इमाम अबू हनीफा का कौल पेश करें, आप इमाम अबू यूसुफ का कौल पेश करें, इमाम मोहम्मद का कौल पेश करें। बातें नहीं, आपने बात कर दी है। आपने डॉक्टर तारुक कादरी की दाढ़ी कम होने पर फासिक का फतवा लगाया। अगर किसी फर्ज के मोड़ के पीछे कोई बंदा नमाज पढ़ता है वो मकरूह तहरीमी को, ये किसकी बात कर रहे हैं सर? किसकी बात कर रहे हैं आप? ये कौन है? किसने ये कहा है? ये किसने कहा है? किसने कहा है? अरे सर मुझे आप हदीस पेश करें बुखारी और मुस्लिम की, पर बराए करम इमाम अबू हनीफा का कौल पेश करें, इमाम मोहम्मद का, इमाम यूसुफ का, शेखैन में से आप पेश कर दें। आप किसी शख्स का कौल पेश करें जो हमारे आइम्मा किबार उलमा है, प्लीज सर। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है कि दाढ़ियां बढ़ाओ, कितनी बढ़ाओ इसका हुक्म दिखा दें। अरे सर आप दाढ़ी लेकर बैठ गए, आप आए थे यहाँ मेरे साथ मेरी सलाह कर रहे हैं, आप दाढ़ी लेकर बैठ गए सर। क्या सर आप दाढ़ी ना रखने वाले को फासिक कह रहे हैं सर? फासिक सर, फासिक कह रहे हैं आप सर, आप दाढ़ी ना रखने वाले को फासिक कह रहे हैं। फासिक के लिए हुक्म दली, हुक्म शरी लेकर आए। फासिक की सादा सी तारीफ है जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करता है, जो शरीयत मुताहरा से मुंह मोड़ता है, ये फासिक की तारीफ है। और दाढ़ी वाला जो है वो मुंह मोड़ लेता है शरीयत से, उसके लिए शरीयत दलील शरी लेकर आए ना, कुरान लेकर आए, हदीस लेकर आए। सर आप इमाम अबू हनीफा का कौल लें, इमाम यूसुफ का लें, इमाम मोहम्मद का लें। मैं इधर बैठा हूं, मैं रुजू भी करूंगा सर, मैं माफी भी मांगूंगा आपसे। आप मेरे सामने शेखैन का कौल लेकर आए। किनका कौल है सर ये? सर आप मुझे एक रेफरेंस दें। आपने इमामत से बात शुरू की ना, आप इमामत की शराइत में मुझे नूरुल इजाज से दाढ़ी दिखा दें। मैं अभी जो है ना डॉक्टर साहब से ऐलान बरात करता हूँ। नूरुल इजाज मैं भी खोल लेता हूँ, आप भी खोल के मुझे सुना दें। सर आप क्या बातें कर रहे हैं सर? मसला क्या है, बात क्या है, तरीका क्या है? आप कहीं की कहीं लेके जा रहे हैं। आप मेरे साथ आए थे खिलाफत पर, वहां जवाब नहीं दे सके, अब आप दाढ़ी पे आ गए। आप इल्मी मकाम देखें सर अपना। आप मुझसे दरसियात पूछ रहे थे, आप बुखारी मुस्लिम की हदीस पेश कर, आप आलिम दीन है सर। अल्लाह आपको लड़की की भी सोचते हैं, ये देता है कि मर्द कमाने वाला है, औरत कमाने वाली नहीं है, ज्यादा उसको भी थोड़ी देनी चाहिए। चले मैं मेरी बात सुन, अपना रखता है क्या उसकी भी तुम अपनी तकलीफ करते रहो। मेरी बात सुन, सोचना चाहिए तुम कहाँ खड़े हो। मेरी बात सुने सर, सारी बातें छोड़ देते हैं। मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने। देखिए आप जब भी किसी से बहस करते हैं ना,
एक दफा आप इसको सुना दें ताकि मुझे पता चल जाए ना कि आपको ये विरासत के मसाइल बड़े अकबर है। जिस शख्स ने विरासत जो कि नब्बे कभी साबित है उसका इनकार किया है जी तो आप कहते हैं मैं 1 मिनट में उनको विरासत कर दूंगा। सर, आप जो है ना मेरे साथ बात करने के लिए आए थे खिलाफत पे, मैं बात कर रहा हूँ आप खिलाफत से गए दाढ़ी पे, अभी आप चले गए विरासत पे। मैं आपसे इधर बात करूंगा फिर आप पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। सर आप एक बात तय कर ले जिस पे हम बात करते हैं, ठीक है? इस तरह तो ये तो आपने जो कहा कि मैं 1 मिनट से पहले फैरोज कादरी साहब की जो ऐलान बयान करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मुझे सिर्फ इस बात का आप जवाब दे दें क्या उसने विरासत वाले मसाइल में कभी का इनकार नहीं किया? सर आपने उनका कभी मौकिफ सुना है? किसका? आपने कभी डॉक्टर फैरोज कादरी साहब का मौकिफ सुना है? एक बंदे की अकली और क्या तरह सुनने चाहिए। सर आप मेरी बात सुने, देखिए आप यहाँ पर मेरे साथ बात करने के लिए जिन मसाइल पर आए थे जलाली साहब वाला जो मसला है जी, इस पर जो फैरोज कादरी के जो बयान है तुमने पूरे सुने हैं? जी बिल्कुल सुने। आप हुक्म करें किस बारे में बात करेंगे? क्या बात की है सर, बताएं प्लीज। मैंने उसने कहा जी उनसे खता हुई जिस तरह के सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अनआते रोयते बारी ताला के बारे में जो खता इत्यादि हुई है, इस तरह से किताब सैयदा ताहिरा से भी हो जाए, ये उसका बयान है कि नहीं है? अच्छा माशाल्लाह, आगे सर। दूसरा जनाब उसका बयान ये है कि ये मुगालता नफ्ज़े मुगालता इस्तेमाल है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। जी जी। उसने कहा कि ये मुगालता सैयदा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा को ही सिर्फ नहीं लगा था बल्कि तमामी अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हा को भी लगा था। मुगालता लफ्ज़ तक उसने बोला है। जी सर। अब मुगालता की आप क्या ताबीर करेंगे, क्या तौज़ीह करेंगे, क्या तशरीह करेंगे? पहले तो ना सर आपको थोड़ा सा मुताला अपना मजीद करने की जरूरत है। अभी आप सुन लीजिएगा, अभी आप सुन लीजिएगा, अभी आप सुन लीजिएगा। अगर सैयदा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में मुगालता का लफ्ज़ बोले जी और वहाँ पर तुम खामोश हो और जी, वहाँ जी। वो खता की जांच का भी तौर करे जी, और जी। आप जब उसने देखा कि बाजार गर्म है जी, और जी। सारे मेरे साथ मिलते जा रहे हैं तो आप इख्तिलाफ राय का कौल हो गया है। जी 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 इस जी। तरह आफताब साहब राजपूत साहब इस तरह काम नहीं करेगा। अभी सुनेंगे ही, मैंने तो अपनी गिरबान में जाको अपनी चर्चाई के इंतजार तक होना, फिर उसके बाद फिर आगे बात करना। अभी सुनेंगे आप। साहब ने जो हमारे उस शेख में आज का जो था ना वो एक लिबादा ऊपर उन्होंने होता है इल्मियत का उसका पर्दा चाप किया है। जी जी इतनी तुम कह रहे इतनी किताबें लिखी है मेरे भाई, तुम्हें तो अभी उसकी किताबों की लिस्ट के भी नाम नहीं आते। जी जी और सर। उसके अंदर उससे क्या क्या किताबों के अपनी तरफ से जो किताबें करता है लिखता है और उस पर काफी पेश करके वो कर देता है। जी जी हो गया इसलिए आप कुछ करें सर, अब सुन लेंगे, अभी आप सुन लेंगे, अभी आप सुनेंगे भी या सिर्फ आगे जाने सर? चलिए देखें, पहली बात तो ये आपने सीरत रसूल जिल्द की 6ठी जिल्द का हवाला दिया मेरे ख्याल में, ऐसा ही है? और नहीं यार मैंने 6ठी जिल्द का हवाला नहीं दिया, मैं उसकी वीडियो का हवाला दे रहा हूँ, वीडियो मेरे पास मौजूद है। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुने ना, देखें दो बातें, दो अभी आप सुन लें सर, अभी आप सुनते भी नहीं है, फिर आप बात ही बात किए जा रहे हैं सर। ये अज़मत सियासियत और हकीकत खिलाफत को देख लें और सफल इख्तियार सीमा मकाम मेरा मुशाजरत में आप ये देख लें। एक किताब से नाम उठाता है दूसरी में वो चुनाव वालों को परचेज करता है तो अपना नाम सिमेंट करके उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। शायद दिन में मैं जाके बारे में आएगा। चलें, अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती अता करे। अभी आप सर बात सुन लें प्लीज, अभी आप सर बात सुन लें, अभी आप बात सुन लें। देखें, हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी आप सुने, आप जलाली साहब के खिलाफ खिलाफ आप जितने मर्जी बयान बनाए रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन ये बात याद रखना तुम्हारे में इतना कम नहीं है कि तुम जलाली साहब के किरदार पर, उनकी खिदमत पर, उनके नजरिया पर, उनके साथ। नहीं नहीं, हम अकाबिर के बारे में बात ही नहीं करते, हमने ना बात कभी की है। बदजुबानी, तरबियत, इखलाक जाहिर वो नजर आ रहा है मुझे कि जलाली साहब ने आपकी कैसे तरबियत की है और डॉक्टर फैरुल कादरी ने हमारी कैसे तरबियत की है, वो बड़ा वाज़ेह है सर, ये किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और मेरी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रूफ से जो किसी चीज को साबित करता हूँ। जो अभी मैंने वीडियो ये की है, जो 4 बंदे मैं 3 बंदे सामने रखे थे, वो किन के हैं? कौन सी? उनकी अकायद नजरियात अपने फैरुल कादरी साहब को किताब क्या कर रखा है, ये सारे किसने हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। किसने इनकार किया? आज तक मिराज कुरान की तरफ से क्यों नहीं उसका जवाब दिया गया? जी जी ऐसे ही है सर। आज तक खड़ी बतेरा फजल की तरफ क्यों नहीं की गई? जी जी ऐसे ही, ऐसे ही है सर। ऐसे ही ऐसा इसलिए कि अंदर जो गंद है ना रफियत का, जी उसकी वजह से नहीं हो रहा। ऐसे ही कह रहे, आप ठीक कह रहे हैं सर, आप बहुत अच्छे आदमी हैं।
مسئلہ صرف اتنا ہے، آپ اپنی تربیت کے مطابق بات کر رہے ہیں. جو جلالی صاحب نے آپ کی تربیت، اخلاق، کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق سوارا ہے، وہ نظر آ رہا ہے کہ کتنا نبی سے محبت کا، نبی سے ایفاء عہد کا، نبی سے وفاداری کا، نبی کے ساتھ عقد قلبی کا، تربیت کی صورت میں ثبوت آپ کا نظر آ رہا ہے جو جلالی صاحب نے آپ کو دکھایا ہے. آپ کو بات ہی نہیں کرنا آتی ہے، آپ بات کریں مغالطے کی. پہلی بات مجھے بتائیں کہ فدق کے معاملے پر ڈاکٹر طاہر القادری کے 36 گھنٹے کے لیکچر ہیں، فضیلت شیخین پر 36 گھنٹے کے لیکچر ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری نے کتابیں لکھ کر صحابہ کا دفاع کیا ہے، سیدنا ابو بکر کی عظمت کا دفاع کیا ہے، طہارت کا دفاع کیا ہے، مقام و مرتبے کا دفاع کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بولنا چاہتے ہیں تو سامنے والوں کو اردو نہیں آتی ہے، آپ مغالطے کی بات کریں. فدق کے بارے میں سیدنا شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کیا بات کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے میرے بھائی، ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے اور سیدہ کائنات ان کے پاس گئی، آپ سننا ہی نہیں چاہتے. آپ شاہ جی ان کو سمجھائیں کہ بات کیسے ہوتی ہے. آپ سید ہیں، آپ نے ادھر ثالثی کا کردار ادا کرنا تھا، یہ بولے جا رہے ہیں، بات سنتے نہیں ہیں. جو ان کو تربیت دی گئی ہے، جو ان کو اخلاق سکھائے گئے، کردار سکھائے گئے، لوگوں کو کافر کرنا، لوگوں کو بدگمانی لوگوں کے دلوں میں ڈالنا. تھوڑا سا سائڈ سے ہوئیے گا. پہلے میں ایک منٹ عرض کرتا ہوں گفتگو ہوئی ہے. سب سے پہلے عزیز بھائی آپ بھی سنے گا، عمران بھائی آپ بھی. عمران بھائی نے اعتراض اٹھایا ہے طاہر القادری صاحب سے کہ خلافت خلافت جو حضرت سیدہ صدیقہ اکبر میں جو اجماع ہے اس حوالے سے، تو جو انہوں نے طاہر القادری صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ولایت کا جو ہے نا، ولایت جو ہے وہ حضرت مولا علی. تو یہ اعتراض عمران بھائی کی طرف سے ہے، وہ آپ اس کا پہلے جواب دیجیے. میں نے شاہ جی جواب عرض کیا ہے کہ ولایت میں ہم سیدنا مولا علی کی جو حدیث ولایت غدیر خم والی ملتی ہے اس اعتبار سے سیدنا علی کو ولایت میں امیر مانتے ہیں. اس کا مطلب ہم نے یہ کب کہا ہے کہ یار میں کسی کو کہوں کہ آپ نیک نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گناہگار ہو؟ یہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ سیدنا مولا علی ولایت میں پہلے ہیں کیونکہ نبی نے ان کا ہاتھ بلند کر کے ولایت کا اعلان کیا ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم سیدنا ابو بکر کو ولی نہیں مان رہے. ہم سیدنا ابو بکر کی خلافت کا، خلافت بلا فصل کا، شیخین کی افضلیت کا، فضیلت مولا علی کا انکار کریں تو آپ ہمیں کہیں یا تو میں اپنے عقائد کا اظہار کر رہا ہوں نا کہ سر ہم نے ایسا نہیں کہا. آپ کو بھی سننے میں غلطی ہوگی، پڑھنے میں غلطی ہوگی، تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک قول دکھا دیں